हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम बैच क्लास फर्स्ट। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ये क्लास के अंदर मैं आप लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट के पीए की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। इस बैच के अंदर मैं आपको एग्जाम तक एक रेगुलरली क्लासेस करवा करके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसके अंदर आपको मैं डेली 2 डिक्टेशंस लिखवाने वाला हूँ। उनको आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर 45 मिनट मिलेंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उसके बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे अपना ट्रांसक्रिप्शन को, उसके बाद में आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। उस रिजल्ट के अंदर आप अपनी मिस्टेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, मिस्टेक्स को देख सकते हो कि कितनी मिस्टेक्स आई हैं, आपकी रैंक क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। आज से हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मतलब 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो गई है। आज हमारी यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ये डिक्टेशंस आपको मेल और फीमेल वॉइसेस दोनों में मिलेंगे। आज जो हम डिक्टेशन में आपको लिखवाने वाला हूँ वो फीमेल वॉइस के अंदर आपको डिक्टेशन सुनने को मिलेगा। इस डिक्टेशन की जो स्पीड रहने वाली है वो 100 के अराउंड रहेगी, मतलब कभी आपको 95 लगेगी, कभी 100 लगेगी, कभी 110 तक भी हम लिखेंगे। तो इससे आपकी जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में भी फ्लक्चुएशंस के साथ में ही डिक्टेशन लिखवाया जाएगा। तो हम लोग उसी टाइप से प्रिपरेशन करेंगे। और इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हम डिक्टेशन। Get ready. 3, 2, 1, start. Section 17 of the Act was amended by the Taxation Laws Amendment Act 1984 Stop Sub-clause of Section 17 of the Act as inserted by the said Amendment Act of 1984 provides that where the employer has advanced any loan to the employee for the purpose of building a house or purchasing a site or a house and a site or for purchasing a motor car, and either no interest is charged by the employer on the amount of such loan, or interest in charged at a rate lower than the rate of interest which the central government may having regard to the rate of interest charged by it from its employees on loans for such purpose granted to them, specify in this behalf by notification in the official gazette, an amount calculated will be regarded as perquisite received by the employee and charged to tax accordingly. Stop para. So far as this question is concerned, what is happening is that, again with a view to keep its employees happy and satisfied, the assessee has been given loans to them at a concessional rate of interest. Stop. The loans are given to employees to build their own houses. Stop. If they build the houses and live in them themselves, the rate of interest is 6%, and if they let out the houses, the interest will be charged at 9% per annum. Stop. The department says that the difference between the concessional rate of interest and the prevailing market rate of interest should be disallowed under section 40 of the Act. Stop. On this question 2, the tribunal, following its earlier decision, held in favor of the assessee. Stop. This question has to be answered with reference to the language employed in subsection bracket 5 of the Act. Stop. Para. It is therefore evident that without a specific provision which was sought to be introduced by the Act, the grant of loan to the employee without charging any interest does not amount to any benefit for the purposes of section 17 of the
Act stop, the omission of sub-clause from the date of its proposed insertion also was to give relief to salaried taxpayers so that granting of loan to an employee without charging any interest would not be treated as benefit for the purposes of section 17 of the act stop the said section by an inclusive definition sought to include loans given by an employer to its employee for purchase of a building or a site with building or for purchase of a motor car without charging any interest or at a concessional rate as perquisite stop para if the loan granted to an employee without charging any interest or by charging interest at a concessional rate amounts to a benefit for the purposes of the act. There was no need for Parliament to introduce the new subclause in the act stop the subsequent omission of the said subclause by the Finance Act of 1985 with effect from the date of its proposed insertion was also made with a view to give relief to salaried taxpayers. Stop. आज का डिक्टेशन आप लोगों ने आई होप अच्छे से लिख लिया होगा। इसी डिक्टेशन की स्पीड के ऊपर आपको एग्जाम में भी डिक्टेशन मिलेगा और इसी टाइप का मैटर आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं। तो हम लोग हर टाइप के मैटर्स को लिखते रहेंगे 100 WPM की स्पीड के ऊपर। अगर आपका SPA का पेपर है तो SPA के लिए भी अलग से बैच चालू हो रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही में आप PA का भी बैच ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ में SSC ग्रेड C और ग्रेड D का भी बैच चल रहा है, आप उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको इसको एक्सेस कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर आप फ्री डिक्टेशन में जा करके कोई भी अपना डिक्टेशन जो है वो एक बार ले करके देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप से वर्क करता है। उसके बाद में आपको जो भी डिक्टेशन के लिए एक्सेस चाहिए होगा तो आप वहाँ से उसको पेमेंट करके उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ये हमारी आज की क्लास है। इस क्लासेस को हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है आपके होने के चांसेस हैं दिसंबर के मंथ के अंदर, क्योंकि नवंबर के अंदर लास्ट के अंदर आपका SPA का पेपर हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपके जो PA का पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास अभी कुल मिलाकर 2 महीने हैं, 2 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। कोई भी आपको इशू या क्वेरी आएगी इस वेबसाइट से लेकर या इस डिक्टेशन से लेकर तो आप मुझे वहाँ पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।